is what we are going to discuss last time. जो हमने डिस्कस कर रहे थे तो उसमें सबसे पहला देखिए ठीक से एक तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट कौन से केसेस में रहता है और ऑब्ट्यूज कौन से केसेस में रहता है, ये हमने कल क्लियर देखा था। इसमें ये बताया गया था कि व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, तो एक्यूट किस केस में रहता है। तो सबसे पहली बात यह है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट ओनली फॉर द लिक्विड्स which are wetting the surface of solid। जो RIP इरफान खान। okay, sorry for the interruption. Basically we are going to discuss about the angle of contact। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है कुछ लिक्विड्स के लिए जस्ट लाइक वाटर, तो वाटर के जैसे जो लिक्विड्स होते हैं तो उनके बारे में ऐसा होता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट होता है। और उसका रीजन ये होता है कि सपोज दिस इज द surface of liquid and solid, we say, then we can say that the cohesive force acting on this the molecules at the boundary due to the liquid molecules is this way, which is less than the adhesive force here। तो एडिसिव फोर्स ज्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है, और इसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो इस तरफ काम करता है जिसको परपेंडिकुलर रहने के लिए सरफेस ऐसा टेढ़ा बन जाता है, ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है, नो डाउट। और दूसरा केस जो है मर्क्यूरी के जैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं, मर्क्यूरी लाइक सब्सटेंसेस, उनके बारे में ऐसा होता है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्टिव्स एक्चुअली, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज दैट the adhesive force in that case is very small than the cohesive force। So cohesive force is more strong than adhesive force, so that the resultant of these two lies within the liquid, and in order to be perpendicular to this force, net force, the surface of liquid becomes concave, convex like this, and because of that we'll see the
surface of this convex, and the angle of contact will become obtuse like this. So this is basically the reason why the some substances have acute angle of contact and some liquids are having obtuse angle of contact. So after understanding all these things, we can go to the next topic, that is about the effect of the addition of impurities on the surface tension and the effect of temperature on the surface tension. See what happens basically. If suppose we have taken a liquid in a container and suppose we हीट इट, तो ये सपोज कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड रखा हुआ है इस तरह से, या वाटर ही समझ लो, वाटर सपोज रखा हुआ है यहाँ पे, और सपोज कि इस लिक्विड को हमने हीटिंग चालू किया, तो जैसे हम इसको हीटिंग करेंगे जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एंड बिकॉज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, द बेसिकली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो रैंडमनेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग बेसिकली. तो ये जो रैंडमनेस है, मतलब मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो बढ़ता जाएगा, एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स विल ट्राई टू मूव फास्टर लाइक दिस. सो सपोज दिस इज द मॉलिक्यूल and suppose this molecule is moving slowly initially, but after this temperature is increased, it will start moving faster than before, and because of that this molecule will be moving here and there inside the liquid like this, and because of that when the chances that the molecule will appear at surface will just get increased, and because of that the cohesive force between the two molecules will just get decreased slightly, and since the cohesive force is decreased, so you can see that the surface tension actually depends on cohesive force only, and that's why the surface tension will also be decreased basically. So when the temperature of a substance is increased, you can see that temperature increases, then the surface tension actually decreases as it is, you can see. So ये जो है ये हम समझ सकते हैं आराम से. Just we have to wait a minute. Okay, so basically, as temperature increases, the surface tension of this liquid always decreases. So there are many examples. Almost in all the cases, as the temperature of the liquid is increased, the surface tension of the liquid is decreased. तो ये बहुत important बात है समझने जैसी, और इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर सपोज T नॉट is going to be the temperature, sorry, surface tension at 0 डिग्री सेल्सियस. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर सरफेस टेंशन है उसको अगर हमने बोल दिया T नॉट, और अगर सपोज इसका जो टेम्परेचर है वो हमने बढ़ा दिया, सपोज थीटा इतना एंगल से या थीटा इतना डिग्री से बढ़ा दिया,
और ऐसे टेम्परेचर पे अगर उसका जो सरफेस टेंशन है वो अगर बन जाता है सपोज T मान लो, तो ये देखा जाता है कि डिक्रीज इन दिस सरफेस टेंशन which is T naught minus T is called as a decrease in surface tension. This decrease in surface tension is actually directly proportional to the surface tension at 0 degrees Celsius also, and at the same time the temperature increase also. And because of that, you can see clearly in the next step we'll say this will work out to be T naught minus T is equal to alpha, some constant alpha into T naught theta, so that we can get this as T naught minus alpha T naught theta is equal to T, which gives simply T is equal to T naught can be taken common, and what we are left with is 1 minus alpha theta. So this is basically the concept of surface tension, and this is the effect of temperature on surface tension. So as from this equation only, we can also clearly see that as the temperature goes on increasing, the surface tension actually goes on decreasing. जैसे यहाँ पे थीटा बढ़ेगा तो उसकी वजह से सरफेस टेंशन कम होगा जरूर. If we draw a graph between surface tension and temperature in this way, तो ये इस तरह का अगर ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर डाल दिया और वाई एक्सिस पे हमने सपोज सरफेस टेंशन डाल दिया, so the graph will be observed to be decreasing one. It's a straight line but it's decreasing one, and it starts from T naught actually. तो T naught से वो start करता है at 0 degree Celsius temperature, the surface tension is going to be T naught, and it goes on decreasing as further. So we say this is the graph between surface tension and temperature, and this is basically the effect of temperature on surface tension. Okay, so the next thing is the effect of impurities on the surface tension. See here, what is the effect of impurities on surface tension? अगर कोई भी impurity अगर हम डाल देंगे तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, सरफेस टेंशन बढ़ता है या कम होता है, ये हमको समझना है. इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि impurities are actually of two types. impurities जो होते हैं वो दो अलग अलग टाइप के होते हैं. एक होता है soluble, readily soluble impurity, ठीक है ना, easily soluble you can say, just like salt or water, sorry, salt or sugar or any other thing which is readily soluble in the water or any liquid. The second thing is, second type of impurity are there which are not readily soluble but somewhat sparingly soluble, you can say. sparingly मतलब बहुत कम amount में. So when the impurities are soluble in a very small amount, तो उस केस में क्या होता है देखो ठीक से. तो उसका एग्जांपल है डिटर्जेंट और उसका एग्जांपल है सोप एंड सो ऑन लाइक दैट. सो वाटर के लिए ऑब्वियसली हम बात करते हैं तो इसमें होता है ऐसा ना कि जब किसी भी सरफेस लिक्विड के अंदर, अगर सपोज लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर अगर हमने सोप डाल दिया, सॉरी सपोज सॉल्ट डाल दिया, जैसे हम सॉल्ट डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स है वो सोल्यूबल होने की वजह से इस सरफेस टेंशन को बढ़ा देंगे. सो द एडिशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड. तो होता ऐसा है ना कि सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज ऑलवेज इंक्रीज्ड व्हेन द सोल्यूबल इम्प्योरिटी इज एडेड इनटू लिक्विड. इवन ये तो चलो वाटर के लिए हमने एग्जांपल्स बताए सॉल्ट एंड शुगर का. अगर सपोज हम कोई भी ये हम जानते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड is a substance which is called as the solvent in case of the organic solutions. तो organic substances जो होते हैं, most of the organic compounds just get soluble into this carbon tetrachloride, and that's why this substance also, the surface tension of carbon tetrachloride also just gets increased when any organic substance, soluble organic substance is
dissolved in it. तो जब भी हम कोई भी soluble substance इसमें dissolve करते हैं तो उसकी वजह से उसका surface tension हमेशा बढ़ता है, ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। और दूसरा है sparingly soluble solutions, sparingly soluble solids। तो जो solutes या जो particles बहुत ज्यादा अच्छी तरह से soluble नहीं है, डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस अगर हमने डाल दिए लिक्विड के अंदर तो उसका इफेक्ट ये होता है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना। सो द सरफेस टेंशन डिक्रीजेस व्हेन सॉफ्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन है वो ऑलमोस्ट 25 डाइन पर सेंटीमीटर हुआ करता है, जबकि नॉर्मल वाटर जो होता है, वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो ऑलमोस्ट 79 पर सेंटीमीटर हुआ करता है। देखो ठीक से, तो कितना फर्क है दोनों के बीच में, कहाँ 70 और कहाँ देख सकते हैं 25। तो ये जो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है उसका रीजन ही ये है कि सोप सॉल्यूशन जब हम डाल देते हैं, जब सोप सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो उसके लिए जरूर एक तो डिटर्जेंट हमको उसमें डालना पड़ेगा। तो एज सुन एज द डिटर्जेंट इज एडेड इनटू द वाटर, the surface tension of water decreases to 25, only 25 from 70। और इवन अगर सपोज साल्ट अगर डालते हैं, सॉल्ट और मिनरल्स और शुगर, अगर इस टाइप के सोलुबल सब्सटेंसेस अगर डालते हैं तो उससे उसका जो सरफेस टेंशन है इट कैन इंक्रीज अप टू 80 और 90 और 98 अप टू इन दिस वे। तो ये जो सरफेस टेंशन है वाटर का वो इंक्रीज होता है जब उसके अंदर सोलुबल सॉल्ट डाले जाते हैं, और डिक्रीज होता है जब इनसोल्युबल और स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स डाले जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये सवाल पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि सरफेस टेंशन कम है ज्यादा है, या और उससे भी आगे जाके हमको हमारे डेली लाइफ के अंदर क्या फर्क पड़ता है, सरफेस टेंशन वाटर का या किसी भी लिक्विड का ज्यादा हो या कम हो, या सरफेस टेंशन बढ़े या घटे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें डेली लाइफ के अंदर हमको उससे क्या लेना देना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सरफेस टेंशन के साथ रिलेटेड है जो हमको समझनी है। तो सबसे पहली ये चीज है कि सरफेस टेंशन जो होता है, अगर सपोज सरफेस टेंशन किसी भी सब्सटेंस का, लिक्विड का अगर कम है तो इसका मतलब लो सरफेस टेंशन मींस द लिक्विड कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स। तो ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो होल्स में से पास होने का जो एबिलिटी होता है लिक्विड का वो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन कम होने का मतलब ये है कि the ability of that liquid to pass through small holes will be more। The liquid will have a tendency to pass through small holes। अगर जितने छोटे छोटे भी अगर होल्स किए जाए तो उसमें से भी ये लिक्विड पास हो सकता है अगर उसका सरफेस टेंशन कम है तो, नो डाउट। बट अगर सरफेस टेंशन ही ज्यादा है, तो अगर हाई सरफेस टेंशन है तो उस केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि द लिक्विड विल नॉट पास थ्रू स्मॉल होल्स, it will require big holes to pass through। तो अगर बड़े होल्स है तो उसमें से ही ये लिक्विड पास हो सकता है, अदरवाइज छोटे होल्स में से लिक्विड पास नहीं हो सकता। दैट इज बेसिकली the surface tension। The surface tension is the ability to not pass through the holes, or we can say low surface tension is the ability to pass through the small holes, but high surface tension is the inability of this liquid to pass through the holes। तो ये हमको पता है, ये एक उसका बेसिक डिफरेंस है। और यही डिफरेंस को अगर सामने रखते हैं तो हम देख सकते हैं आराम से कि वाटर को हम यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर क्लॉथ्स वॉशिंग के लिए। जैसे कि हमको पता है वॉशिंग क्लॉथ्स इज द मेन यूज ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ के अंदर हम जानते हैं कि वॉशिंग मशीन के अंदर या बाल्टी के अंदर हम पानी रखते हैं और उसके अंदर जब कपड़े डालते हैं तो कपड़े धुलाई करने के लिए ये जरूरी है कि कपड़ों के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं तो उन होल्स में से वाटर पास तो होना चाहिए जरूर। सपोज ये कपड़ा है तो इस कपड़े के अंदर जो होल्स होते हैं, इन होल्स में से अगर वाटर पास ही नहीं होगा तो वहां पे जमा हुआ जो डर्ट है वो कैसे निकालेगा। तो डर्ट निकालने के लिए जरूर इन होल्स में से पास होना जरूरी है, एंड वाटर कैन पास थ्रू दिस होल्स ओनली व्हेन its surface tension is less, remember। and surface tension अगर कम करना है तो उसके लिए हमको ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, जो कि हमने अभी देखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन एंड इफेक्ट ऑफ soluble impurities on surface tension।
तो हमने ये देखा कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो लिक्विड का सरफेस टेंशन कम होता है, और जब सोप या इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज जब डाले जाते हैं तभी भी सरफेस टेंशन लिक्विड का कम होता है। और इस यही रीजन है जब हम यूज करते हैं वाटर को एज अ क्लॉथिंग वॉशिंग एजेंट, तो वॉशिंग के लिए जब वाटर को यूज किया जाता है तो इट इज रिक्वायर्ड दैट इट सरफेस टेंशन मस्ट बी लेस, बहुत कम होना चाहिए उसका सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन कम करने के लिए हम दो ऑप्शंस यूज करते हैं। एक तो इस वाटर को हम हीट करते हैं, तुमने देखा होगा कभी हम हॉट वाटर यूज करते हैं इस कपड़े धोने के लिए, धुलाई करने के लिए। दैट इज द रीजन बिकॉज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर decreases the surface tension. As temperature increases, surface tension decreases, and when the surface tension is decreased, it is easily able to pass through these small holes here in the cloths, and that's why it's very effective in washing there. तो ये होता है। और दूसरी बात कि हम डिटर्जेंट भी डालते हैं कभी कभी, तो ये हम देखते हैं यहाँ पे कि when the detergent is added into the water, soap is added into the water, what happens is its surface tension actually decreases up to 25, we can already say. So because of that only, the less surface tension, water having less surface tension can pass through the small holes in cloths easily than normal water, and that's why we can see the water, the soapy water is effective in washing clothes than normal water, and that's why the water is soapy water is used, or detergent containing water is used for washing the clothes. But in no way we can no way we use the salt water, कभी भी हम कभी भी salty water use नहीं करते हैं, and that's the reason why sea water is useless for washing purpose. तो सी वाटर अगर हम ले लेंगे तो सी वाटर कंटेन्स द मिनरल्स, लार्ज नंबर ऑफ soluble impurities like salt and sugar and even बहुत सारे जो मिनरल्स और उसके अंदर होते हैं, सॉल्ट वगैरह होता है। सॉल्ट तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और उसकी वजह से ही हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर सॉल्ट सी वाटर से अगर हम कपड़े धोते हैं, क्लॉथ्स अगर वॉशिंग करते हैं, तो वो कपड़े धुलाई होने से अच्छा, मतलब उनका वो सफेद कपड़े अगर हम सपोज सी वाटर से अगर धोते हैं तो वो अच्छे होने से बदले वो खराब हो जाते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि कपड़े जो है वो उसका जो वॉशिंग एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, इफेक्टिव नहीं हो सकता सी वाटर की वजह से, बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट एंड मिनरल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सरफेस टेंशन ऑफ सच अ वाटर इज वेरी हाई, and since its surface tension is high, we can say that this such a water is not be able to wash the clothes, and that's why it's not used for washing. तो ये सब जो चीजें हैं वो हमको समझ में आती है सरफेस टेंशन के बेसिस पे। इवन आगे जाके ये भी हम समझ सकते हैं कई बार हमको सरफेस टेंशन ज्यादा होना एक्सपेक्टेड होता है, जैसा कि अगर हम छाता बना रहे हैं या रेनकोट बना रहे हैं तो उसके लिए हमको ये जरूरी है कि वो रेनकोट में से पानी पास नहीं होना चाहिए, या छाता जो है उसमें से वाटर जो है वो इंटर नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर होल्स होने के बावजूद भी उसमें से वो पास नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उस छाते का जो कपड़ा है वो इसी तरह का बनाया जाता है जिसके साथ इस वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा हो, और उसकी वजह से ही यहाँ पे और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी ज्यादा हो, ऑब्ट्यूज हो। तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं आराम से कि जैसे हम ये यूज करते हैं जो कपड़ा बना हुआ होता है इसका रेनकोट का या छाते का, तो वो उस ऐसे मटेरियल का बना हुआ होता है जिसका सरफेस टेंशन वाटर के साथ ज्यादा है, और उसकी वजह से ही यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से ही ये समझ सकते हैं कि वाटर जो है वो अंदर नहीं एंटर करता, छाते के कपड़े में से इंटर नहीं करता। तो ये सब चीजें हैं। इवन समटाइम्स सपोज केरोसिन जो होता है, केरोसिन जब हम वाटर के ऊपर डाल देते हैं, kerosene floats on water and it reduces the surface tension, and because of that we can say the insects और जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो वाटर के ऊपर तैरते हैं, उनके जो अंडे वगैरह तैरते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम केरोसिन डाल देते हैं तो उसकी वजह से वो मर जाते हैं, and that is basically reason why we can see the effect of surface tension। ये भी एक surface tension का application है, हम समझ सकते हैं। when kerosene is sprayed on water, it decreases the surface tension, and because of that the eggs are just covered, and because of that क्योंकि eggs का जो पानी के साथ जो surface tension है वो ज्यादा है इसलिए वो तैरते हैं,
लेकिन केरोसिन के साथ जो सरफेस टेंशन उनका है वो कम है, और उसकी वजह से वो उसके ऊपर कवर हो जाते हैं, और उसकी वजह से ही एग्स जो है वो मर जाते हैं, और उसकी वजह से उनका जो पैदाइश है वो रुक जाता है। तो ये सब हम समझ सकते हैं आराम से। दिस इज बेसिकली वन ऑफ द एग्जांपल और एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस टेंशन। इवन वी कैन सी अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आल्सो। एक लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। सपोज वी हैव अ कंटेनर व्हिच इज कंटेनिंग लिक्विड लाइक दिस, सपोज, एंड ये उसका क्रॉस सेक्शन है, और उसके अंदर हमने एक सपोज एक लकड़ी का टुकड़ा या एक माचिस का तीली जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और जैसे ही हमने एक तरफ अगर ऑयल का एक ड्रॉप भी अगर गिरा दिया, तो सपोज एक ऑयल का जो बोतल है उसमें से हमने एक ऑयल का एक ड्रॉप जो है वो यहाँ पे गिरा दिया, तो जैसे ही हम इसके ऊपर ऑयल का ड्रॉप एक तरफ गिरा देते हैं तो उस तरफ का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और दूसरी तरफ का सरफेस टेंशन ऑलरेडी वाटर का है उतना ही है, और उसकी वजह से ये जो ये जो लकड़ी का तीली है वो दूर भाग जाता है सरफेस टेंशन कम होने की वजह से। जिस डायरेक्शन में हमने ऑयल गिराया तो उस डायरेक्शन का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो खींचा चला जाता है, and that is again another example of surface tension. We can also see important examples through a video. एक वीडियो हम देखेंगे जिसके अंदर बहुत सारे सरफेस टेंशन के एग्जांपल्स हमको दिखाई देंगे। देखो ठीक से। Into the middle. As many different colors as you want. Take a Q-tip covered in soap and dip it right into the center of the food coloring to make fireworks. That is awesome. Science. This one I discovered by chance the other day while I was drinking coffee. I was flicking the little stir across the surface of the coffee and I noticed these crazy little balls appearing. So I went home to try it again and nothing happened. I tried a few different things to recreate the spheres, including mixing soap into my coffee, and sure enough, there they were again. Which makes me wonder what was in my coffee the other day. So it seems to be the soapy film that causes these little spheres to form, and the motion of the water tends to make the spheres last longer. It works on the milk and food coloring plate as well. You might try it with other liquids. This is a pretty interesting phenomenon that I had never heard of. If you have any guesses as to what it is, leave me a comment. This one's fun. Make a little boat out of a card, and then place the boat on the surface of the water. Now use your soap to break the surface tension and power the boat. Take an open jar full of water and put a card over the top. Flip it over and it'll hold up the card. Now this is a pretty well-known trick, but what about this one? The water stays in the jar. Oh yeah, I forgot to mention that there's a screen on the top of this one. I switched them. Tricked ya! I screwed the top of the jar over the screen so that it's on there really tight. Now when you turn the jar over, you can slide the card out and the surface tension across the screen is enough to hold the entire jar of water up. But it's still open. I can stick some needles into the screen and the surface tension still holds the water. I love this one. Take a paper clip or a pen spring and balance it gently on the surface of the water. And if it doesn't work, you can always try with tissue paper. Oh, see, there we go. Place a bit of tissue paper on the surface of the water and move the tissue paper out from under the paper clip. Okay, I'm gonna take a little bit of soap on the end of a Q-tip, and if I touch the water with the end that doesn't have soap, nothing happens to the paper clip. But I'm gonna touch the surface with the soap and watch what happens. It immediately falls. Kinda surprising. This one's pretty easy. See how many drops of water you can fit on a penny. The number may surprise you. Oh. Ah. This is a bonus experiment and involves a little bit more than surface tension and should also involve some adult supervision. So as the pan heats up and I drop some water droplets into it, water droplets that hit the hot surface will vaporize quicker and quicker until eventually they won't. And you can see the perfect little spheres they make. If I keep adding more water though, something strange happens.
Who knew there was so much fun science in H2O? Okay, so we'll see. Okay, so one more thing you have to understand. एक और एक वीडियो हमको देखना है जिसके अंदर हम क्लियरली देख पाएंगे कि किस तरह से प्रेशर, कोई भी जो सोप बबल होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है तो वो प्रेशर रेडियस के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है। देखिए ठीक से जैसे हमने कल भी ये बात की थी कि सपोज एक हमारे पास दो सब बबल्स है। सपोज दिस इज अ सोप बबल, we'll see, and this suppose its radius is going to be r, इसका radius r है suppose, तो हम समझ सकते हैं कि the pressure inside this soap bubble is suppose pi and the pressure outside this bubble is going to be po. So we have seen that pi is always greater than po, and we have to prove here that pi minus po is going to be equal to 4t upon r for the bubble. तो कोई भी बबल के अंदर जो प्रेशर एक्सेस प्रेशर होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसको हम डेल्टा पी भी बोल सकते हैं, तो डेल्टा पी इज ऑलवेज इक्वल टू 4t upon r. And because of that, here what happens is if there are two bubbles, one is a smaller bubble and another is a bigger bubble, then we can see that here the radius is smaller, so the pressure, excess pressure here is going to be greater here in this case. तो यहाँ पे जो रेडियस है ये यहाँ पे बड़ा है और उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेस प्रेशर बहुत छोटा होगा। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बिगर बबल is always less than the excess pressure inside the larger bubble. And suppose if we connect these two bubbles together, अगर इन दोनों बबल्स को अगर हम एक स्ट्रॉ के द्वारा अगर एक कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ये सपोज एक स्ट्रॉ अगर जोड़ दिया हमने बीच में, तो जैसे हम ये एयर को फ्री करेंगे तो द एयर विल बी फोर्स्ड टू फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे जबकि हम जानते हैं कि देयर इज हाई प्रेशर and that's why the air will start flowing from this end to this end, and this bubble will just go on shrinking down and this bubble will just grow in size. And this happens, and we can see this practically in the one video which we are going to share now. So just concentrate this on this video carefully. See it here. तुम देख पा रहे ठीक से, दोनों बबल्स के अंदर उन्होंने एयर प्रेस किया और जैसे ही बीच वाला जो रॉड है, जो बीच वाला जो पाइप है वो ओपन कर दिया, तो उसकी वजह से ये जो छोटा बबल था वो श्रिंक हो गया और जो बड़ा वाला बबल है वो साइज में ग्रो हो गया। एंड दैट इज बिकॉज द एक्सेस प्रेशर again we can see the same experiment here. देखिए ठीक से फिर से एक बार वही एक्सपेरिमेंट है। दो बबल्स जो है वो उन्होंने सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबोया और उसके बाद अभी एयर फ्लो कर दिया किया जा रहा है
दोनों बबल्स ग्रो हो रहे, एक बबल छोटा है एक बबल बड़ा, इस तरह से किया। और उसके बाद जैसे ही एयर फ्री कर दिया गया तो छोटा बबल जो है वो श्रिंक हो गया और बड़ा जो बबल है वो साइज में ग्रो हो गया। एंड दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द pressure difference. Excess pressure inside a small bubble is always greater than the pressure inside a small bubble. ये भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, देख लीजिए एक बार। ये एक सिंपल सा सिस्टम है। सोप सॉल्यूशन के अंदर ये पूरा सिस्टम डुबाया गया। जैसे ही सोप फिल्म फॉर्म हो गया तो उसके बाद एक तरफ का राइट साइड का जो सोप फिल्म है वो ब्रेक कर दिया गया। तो जैसे ही वो राइट साइड का सोप फिल्म ब्रेक किया जाता है तो उसकी वजह से ये जो स्ट्रिंग है वो इस तरफ दौड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, यू कैन सी क्लियरली। So here is the example of surface tension, you can see. So all these are the examples of surface tension. So let us come back to this board. So basically what happens is the surface tension की वजह से ही जो सोप सॉल्यूशन के या सोप बबल के अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, एक्सेस प्रेशर डेवलप होता है। ना सिर्फ सोप बबल के अंदर बल्कि ड्रॉप के अंदर भी, लिक्विड ड्रॉप के अंदर भी सरफेस टेंशन बनता है। और वही हमको यहाँ पे देखना है अभी कि किस तरह से लिक्विड ड्रॉप के अंदर सरफेस टेंशन बनता है। तो हाउ मच इज द एक्सेस प्रेशर, वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दैट। तो ये एक डेरिवेशन है जो 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो याद रखिए ठीक से कि दिस डेरिवेशन में बी आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 4 मार्क्स। सो बेसिकली इट्स हेडिंग इज सिंपली दैट, इसका हेडिंग ही ये है कि द एक्सेस प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप ऑब्वियसली। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है तो उसके लिए हमको अभी फॉर्मूला बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहला हम ये करेंगे कि सपोज देयर इज अ बबल और ड्रॉप, कंसीडर लिक्विड ड्रॉप हियर इन दिस वे। तो ये सपोज एक लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस हम मान लेते हैं r है सपोज, ओके। और yes, anybody is having doubt? Okay, so basically इसका जो रेडियस है वो हमने मान लिया r है, and suppose that there is liquid inside, and now suppose that this bubble, this drop, liquid drop is slightly expanded. ये ड्रॉप जो है वो इमेजिन करो कि एक स्लाइटली एक्सपांड होता है। तो ये इसके लिए अंदर का जो प्रेशर है उसको हम बोल देंगे PI, यू कैन सी। एंड बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पे, तो उसको हम बोल देंगे PO, नो डाउट। एंड बिकॉज ऑफ दैट द एक्सेस प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे रहेगा वो कंटिन्यूअसली इस बबल लिक्विड ड्रॉप के ऊपर अंदर की तरफ से बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। अभी मान लो कि इस फोर्स की वजह से ये बबल जो है वो स्लाइटली एक्सपांड हो जाता है। सपोज कि ये जो बबल है वो इस तरह से एक्सपांड होके उसका जो शेप है फिर भी स्फेरिकल ही रहता है लेकिन थोड़ा ज्यादा बन जाता है। सपोज दैट द शेप ऑफ दिस बबल एक्सपांड्स थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, जिस डिस्टेंस से वो एक्सपांड हो गया उसको हम बोलने वाले हैं dr। dr means difference in r. So this is going to be the small distance through which the bubble is expanded, okay। And at the same time suppose this, ये जो फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, इस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन भी तो हुआ है जरूर, और वो वर्क डन इस बबल के अंदर एज अ सरफेस एनर्जी स्टोर हुआ है। So if we want to find out the surface energy here,
सो अभी अभी ऑलरेडी हमने फॉर्मूला बना के रखा है कि सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, चेंज इन एरिया। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो उसके लिए लेकिन हमको चेंज इन एरिया निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले इनिशियल एरिया निकालेंगे और उसके बाद फिर फाइनल एरिया निकालेंगे और उन दोनों का डिफरेंस लेके हमको चेंज इन एरिया मिल जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इनिशियल एरिया निकालने के लिए अभी ऑब्वियसली वो स्फीयर तो है, तो उसकी वजह से उसका जो इनिशियल एरिया है वो हमको मिल जाएगा जो हमारे पास स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला है उससे, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर, इससे। तो ये हो गया इनिशियल एरिया। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फाइनल एरिया तो उसके लिए हमको उसका फाइनल रेडियस भी चाहिए जरूर। तो फाइनल एरिया निकालने के लिए हम इसमें यहाँ पे रेडियस के बदले r प्लस डी आर डाल देंगे, तो उससे उसका जो फाइनल एरिया है वो निकल आएगा, वो बन जाएगा 4 इंटू पाई, 4 पाई इंटू रेडियस उसका है r प्लस डी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया फाइनल एरिया। एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द चेंज इन एरिया। सो वी कैन से दैट द चेंज इन एरिया basically is going to be equal to simply the final area minus initial area. So that we can say this will be final area, which is 4 pi r plus dr का whole square minus simply 4 pi r square only. So if we take this 4 pi out, then we can see clearly 4 pi is taken out from this bracket. So here we have seen that the 4 pi is taken out from the bracket and we are left inside r square. अगर इसको हमने एक्सपांड किया, जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, तो उससे अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो इसमें से हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म विल बी आर स्क्वायर प्लस, जैसे कि हम जानते हैं 2ab वाला जो टर्म है तो वो बनेगा 2r dr प्लस dr का स्क्वायर एंड 4 पाई तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो माइनस आर स्क्वायर यहाँ पे बचा रहेगा अंदर एज इट इज सेकेंड टर्म में से। तो ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 पाई तो बाहर ही है ऑलरेडी, बट ये आर स्क्वायर जो है वो एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको हम लिख सकते हैं आराम से 2r इंटू डी आर। तो ये हमारे पास है 2r dr प्लस dr स्क्वायर। बट जैसा कि हम जानते हैं कि dr स्क्वायर is going to be very very small. dr square can be neglected as compared to r. तो dr स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है और उसकी वजह से हम इसको निगलेक्ट करके लिख सकते हैं सिंपली। तो अगर dr स्क्वायर को अगर हम ये टर्म अगर निगलेक्ट कर देंगे तो बाकी जो बचेगा तो वो सिंपली 4 पाई इंटू 2r dr के बराबर होगा सिंपली। चलो ठीक है, और इसको ही हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकेंगे आराम से। द चेंज इन एरिया हियर वी कैन डिनोटेड बाय dA व्हिच इज गोइंग टू बी सिंपली इक्वल टू 8 पाई r dr। ओके, तो ये बन गया हमारा 8 पाई r into dr as a change in area. Once you get this change in area, you can make use of this change in area in the formula for surface energy. So change in surface energy, जैसा कि हमको पता है ऑलरेडी कि change in surface energy is always equal to the surface tension into the change in area. ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है लास्ट लेक्चर्स में, तो हम ये अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिल जाएगा चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एनर्जी which is denoted by delta u, you can say, which is going to be equal to surface tension which is T multiplied by change in area which is dA. So that we can solve this further by putting the value of dA here inside. तो ये du का जो वैल्यू है, डेल्टा u का जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगा एक्चुअली ये dA का वैल्यू जो 8 पाई r dr है, तो अगर हमने यहाँ पे जाके रख दिया तो हमको ये मिल जाएगा 8 पाई सिंपली 8 पाई r इंटू t इंटू dr। ओके, तो ये जो हमको मिल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन सरफेस एनर्जी which you can give it as equation number 1.
and now we can just focus on this spherical drop once again. ये जो ड्रॉप है, इस ड्रॉप के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूसली देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस होल आउटवर्ड्स. तो यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ एक फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, और ये फोर्स कितना है वो अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि एक्सेस प्रेशर कितना है. क्योंकि देखो अभी अंदर का जो प्रेशर है वो यहाँ पे PI हमको दिख रहा है, और बाहर का जो प्रेशर है वो PO है, ये हमको दिख रहा है. तो अभी अंदर का प्रेशर बाहर की प्रेशर से कितना ज्यादा है तो वो उसको हम बोलेंगे एक्सेस प्रेशर. वी कैन से, सो वी कैन डिनोट इट बाय डेल्टा P हियर. सो डेल्टा P कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू PI minus PO, where PI stands for the pressure inside and PO stands for outside the pressure. So that is pressure outside. And now obviously the force, we know that the force is always equal to the pressure into area. तो ये अगर फॉर्मूला हमने यूज किया तो ये जो बाहर की तरफ ये फोर्स काम कर रहा है हर एक पॉइंट पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स एक्चुअली कितना होगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दिस एक्सेस प्रेशर, इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं डेल्टा P. तो दिस एक्सेस प्रेशर should be multiplied with the area. So this excess pressure multiplied by the area of this sphere will give us the total force acting on this. तो ये अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में simply force which is denoted by F. So here F becomes exactly equal to excess pressure which is delta P, we can say, that is multiplied by area of the sphere, as we know it is 4 pi r square. So if we replace it by that, then we get this delta P into 4 pi r square, and hence we can get this total force to be simply 4 pi r square into delta P, or we can also call it as simply PI minus PO. ओके, डेल्टा P को ही हम PI माइनस PO भी बोल सकते हैं, नो डाउट. अभी हमारा नेक्स्ट काम है जो वर्क डन निकालना, कि व्हाटएवर व्हेनेवर दिस फोर्स एक्ट्स ऑन दिस लिक्विड ड्रॉप इनसाइड, तो यहाँ पे अंदर से जब ये फोर्स यहाँ पे बाहर की तरफ काम कर रहा है तो उसकी वजह से ये जो ड्रॉप है वो एक्सपांड हो गया dr इतने डिस्टेंस से. तो अगर इस फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो अगर dr है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन इज ऑलवेज गिवन बाय द फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इफ वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन दिस केस हियर, तो यहाँ पे अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो हमको ये मिल जाएगा सिंपली कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो उससे हमको ये मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इससे नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा dW, that is the work done, which is going to be the force F, that is multiplied by displacement, which is dr here. So we can get this dW to be simply equal to 4 pi r square into PI minus PO into dr, and this is going to be the work done. We can give this as equation number 2 here, and now we'll say use this equation number 1 and 2 and just combine them together. तो क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पे हमको चेंज इन सरफेस एनर्जी मिला हुआ है जबकि यहाँ पे हमको वर्क डन मिला है, और जैसा कि हम जानते हैं कि whatever work is done just gets stored in the form of potential energy which is called as surface energy. तो यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि the change in surface energy actually comes from work done, or we can say whatever work is done here is going to get stored in the form of change in surface energy, and that's why we can equate this dW and du, where dW is obtained in second equation and du is obtained here in first equation. So if we replace them here, then we can get this as 4 pi r square into PI minus PO into dr, which is going to be equal to du. Here du is already there in this first equation,
that is nothing but 8 pi r t into dr। तो ये हमको इसमें से मिल रहा है। अब जबकि ये दोनों को इक्वेट करने से सबसे पहली बात ये है कि dr जो है वो कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं आराम से दोनों तरफ dr है, और इवन 4 पाई भी तो है, ये 4 पाई कैंसिल होके इधर 8 पाई कैंसिल होके यहाँ पे 2 बचेगा जरूर, और इधर से r कैंसिल हो जाएगा और ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ r बचेगा इधर। तो हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि pi माइनस po इंटू r, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे r है, which is going to be exactly equal to 2t actually, and hence we can get in the next step, that is तो नेक्स्ट स्टेप में हमको ये मिल जाएगा आराम से कि pi, अगर ये r को नीचे भेज देंगे उस साइड में तो उससे हमको ये मिलेगा pi माइनस po is equal to 2t upon r, and that is what we want to prove here। तो यही हमको प्रूव करना था एक्चुअली, और इसको ही लैपलास लॉ कहा जाता है। दिस इज एक्चुअली द लैपलास लॉ, which tells us simply that the excess pressure inside a liquid drop is always given by 2t upon r। But here one thing is to be noted that हमको एक बात और समझनी है अच्छी ठीक से कि लिक्विड ड्रॉप के बदले अगर हमारे पास एक सोप बबल है, सपोज वी हैव अ सोप बबल लाइक दिस, तो सोप बबल के बारे में हम जानते हैं इट हैज टू सरफेसेस, वन इज इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। तो इसलिए यहाँ पे अंदर में भी एयर होता है और बाहर में भी एयर होता है, और सिर्फ यहाँ पे अंदर लिक्विड होता है, इधर यहाँ पे लिक्विड है। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस सोप बबल के बारे में देखा जाता कि कर्व सरफेस, जहाँ पे भी कर्व सरफेस है तो उनके बीच में ये प्रेशर डिफरेंस जरूर आता है। तो अगर इधर का प्रेशर जो है उसको अगर हमने PO बोल दिया, और इधर अंदर का जो प्रेशर है बिल्कुल अंदर का, तो उसको अगर हमने PI बोल दिया, तो पता चलेगा कि इस कर्व सरफेस के लिए देखा जाता है कि इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, सरफेस के बीच में का प्रेशर डिफरेंस है, वो एक्चुअली 2t अपॉन r रहने वाला है, और एट द सेम टाइम इन दोनों के बीच में का जो प्रेशर डिफरेंस है वो वापिस 2t अपॉन r रहने वाला है। और उसकी वजह से यहाँ पे इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है, नेट प्रेशर डिफरेंस जो है यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रेशर है, तो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस बनता है इन केस ऑफ अ सोप बबल, तो वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू pi minus po is equal to 4t upon r। We have to remember this correctly, pi minus po is equal to 4t upon r for a soap bubble। तो कोई भी सोप बबल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सोप बबल के बारे में हमेशा pi माइनस po जो है या एक्सेस प्रेशर जो होता है वो हमेशा 4t अपॉन r के बराबर बनता है। लेकिन जैसे कि अभी हमने प्रूव किया कि pi माइनस po is just only 2t upon r for liquid drop only। So this formula will be used only for liquid drop। तो ये जो है लिक्विड ड्रॉप के लिए ये फॉर्मूला चल जाएगा, लेकिन सोप बबल के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज 4t अपॉन r। तो इन केस ऑफ सोप बबल द प्रेशर डिफरेंस इज डबल देन द प्रेशर डिफरेंस इन केस ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है वो सिंपली 2t अपॉन r हुआ करता है, जबकि जो सोप बबल के बारे में जो प्रेशर डिफरेंस है वो 4t अपॉन r के बराबर हुआ करता है। ये अच्छी तरह से हमको याद रखना है। और एक सिचुएशन है हम जान सकते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज देयर इज अ वाटर and suppose there is a air bubble inside water। अगर सपोज वाटर के अंदर नीचे अगर एयर बबल इस तरह से फॉर्म होता है, ये देखो नीचे, ये सपोज एयर बबल है। अभी एयर बबल के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पे बाहर में इस तरफ वाटर है, यहाँ पे वाटर रहने वाला है, और इस एयर बबल के अंदर जो है तो अंदर एयर रहने वाला है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं आराम से कि यहाँ पे एयर है और बाहर में वाटर है। तो इस केस में भी फिर से एक बार हमको क्या मिलेगा, द प्रेशर डिफरेंस मींस प्रेशर एट दिस पॉइंट हियर इनसाइड विल बी pi and the pressure outside here it will be denoted by po। So again we can make use of this, that the excess pressure inside the liquid pi minus po is once again
it is 2T upon R because there is only one surface here. तो इसलिए यहाँ पे ये जो एयर ड्रॉप है या एयर बबल है, तो एयर बबल के केस में भी हमको ये समझना है कि जो एक्सेस प्रेशर होता है वो हमेशा 2T upon R के बराबर ही बनता है, क्योंकि एयर बबल अगेन हैज वन सरफेस ओनली, it doesn't have two surfaces like soap bubble. So what is the difference between soap bubble and air bubble? Is simply air bubble is formed inside a liquid and soap bubble is formed in air. तो soap bubble के अंदर में हम देखते हैं कि अंदर भी एयर होता है इधर और बाहर भी एयर होता है और बीच में लिक्विड होता है, जबकि एयर बबल जो लिक्विड के अंदर फॉर्म होता है तो उसके अंदर सिर्फ एयर होता है और बाहर लिक्विड होता है। और ड्रॉप के बारे में अगर बात करते हैं तो ये सपोज ड्रॉप है, तो ये ड्रॉप के अंदर में तो लिक्विड है लेकिन बाहर में एयर है, तो इसलिए फिर से इंटरफेस तो एक ही है, बाउंड्री एक ही है। तो जब तक बाउंड्री एक है तब तक हमको ये इक्वेशन यूज करना है, और जैसे ही दो बाउंड्रीज आते हैं सोप बबल के बारे में जैसे होता है तो उस केस में हमको ये इक्वेशन यूज करना है। ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। दिस इज बेसिकली द concept of pressure difference in case of soap bubble and liquid drop. So we have seen here, तो इस सेक्शन में हमने ये देखा कि किस तरह से लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल के बारे में डिफरेंस होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द capillarity and the capillary tube actually, but I think we will see it in the next lecture, tomorrow's lecture. So first of all we'll just make sure what we have done so far. तो अभी हमने क्या क्या सब किया तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर लिख लेंगे फिर ठीक से एक रिक से। यहाँ तक हम कल आए थे, हमने लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है वो डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, the nature of liquid, impurity, temperature, all these are the factors affecting the angle of contact. And also we have seen the effect of impurity and temperature on the surface tension. तो हमने देखा आज कि the effect of impurity on the surface tension, तो जैसे salt वगैरह जो डालते हैं, commonly soluble substances जो होते हैं वो जब हम ऐड करते हैं तो उससे हमेशा surface tension जो water का है वो बढ़ता है, हमेशा याद रखो ठीक से। The surface tension of water always increases when impurities like sodium chloride, means salt or sugar, is added in it. But on the other hand, we'll say the surface tension actually decreases due to addition of sparingly soluble substances such as phenol or detergent. तो डिटर्जेंट ऐड करने की वजह से जो है सरफेस टेंशन एक्चुअली डिक्रीज होता है, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर डिक्रीजेस एंड मेक्स इट एबल टू pass through small pores in the cloths, and this is all about the effect of impurity. And temperature के बारे में हमने ये देखा ऑलरेडी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे ऐसे सरफेस टेंशन वाटर का कम होता जाता है। So surface tension decreases due to addition of impurities. ये भी हमने देखा already. Next is about the excess pressure. तो concave और convex surface के बारे में तो हमने already देखा था कल कि किस तरह से concave side का pressure हमेशा ज्यादा होता है और convex side का pressure हमेशा कम होता है। और drops and bubbles के बारे में, if suppose we have a drop like this, and then we can say that the excess pressure, the pressure inside is denoted by Pi, and the pressure outside will be denoted by PO, and the Pi minus PO is called as the excess pressure, which depends on radius. तो जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने अभी भी प्रूव किया, Pi minus PO is equal to 4T upon R for a soap bubble. But ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, देखो इससे सबसे पहले हमने फाइनल एरिया निकाला, ये जो फाइनल एरिया हमने निकाला, उसके बाद इनिशियल एरिया तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 4πr²। इन दोनों का डिफरेंस हमने लिया जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, और डिफरेंस लेने के बाद हमने ऑब्वियसली उसका सरफेस टेंशन के साथ मल्टीप्लाई किया उसको, जिससे हमको वर्क डन मिल गया एक तरफ। तो ये वर्क डन एक तरफ से मिल गया, और दूसरी तरफ वर्क डन निकालने के लिए हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूला यूज किया। तो फोर्स तो हमने निकाला एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया करके, और उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई किया, तो एक्सेस प्रेशर को डाल दिया यहाँ पे Pi minus PO मल्टीप्लाइड बाय
surface area, which is 4 pi r square, and then we have just seen this force to be equal to pi minus po into 4 pi r square, no doubt. And then we have expressed work done. तो वर्क डन हमने निकाल लिया इस तरह से। ये फोर्स का फॉर्मूला अगर यहाँ पे डाल देंगे तो हमको ये वर्क डन मिल जाएगा पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, and then we'll be able to equate the work done found out into different equations here. ये दो अलग अलग इक्वेशंस में से जो वर्क डन हमको मिलता है वो हमको इक्वेट करना है, जिससे बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाती है और पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t अपॉन आर मिल जाता है। दिस इज फॉर द लिक्विड ड्रॉप and this is called as Laplace law for a drop. But in case of a soap bubble, we can see that it becomes 4t upon r, just because it gets doubled because it has two surfaces. तो दो surfaces होने की वजह से वो double हो जाता है और उसकी वजह से हमको 4t upon r मिल जाता है। And this is basically the the relationship between excess pressure and surface tension. So this is the expression for surface tension.